गाइस, सो एज यू ऑल नो, हर एक ट्रेंड को एस्टैब्लिश होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, पर वो ट्रेंड को इनिशिएट करने वाला कोई ना कोई होता है. So today I have one of the speaker who is with us and he is none other than Sumed Kanade. So Sumed is one of them. जब नागपुर में नागपुर ब्लॉगिंग फूड ब्लॉगिंग का जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, so Sumed वो इंसान है जिसने वो ट्रेंड को यहाँ पे लाया था and moreover he is the one who has been inspiration for food blogging and especially in this industry. So today we'll understand कि उनकी जर्नी कैसे रही थी, what all were the things जो उन्होंने किया था उनके पूरे जर्नी में, आज वो कहाँ पर है, and to specify this, why this podcast is important for you to listen is only because he has been the person who is also into event management. He is somebody who is, you know, who is inspiring a lot of youngsters for coming into this industry of food blogging. And not only this, but he has worked with top national brands in India. So now just imagine जिस इंसान के पास में इतना exposure होगा तो उससे सीखने लायक कितनी चीज होगी. So let's start with this beautiful and raw conversation with the only Sumed Kanade. Hi Sumed. Thank you so much for the opportunity and thank you for having me in this show. I watched a couple of episodes and it was very interesting and fascinating. I like the concept of the podcast. So looking forward. Yes, absolutely. Yeah. So Sumed, सबसे पहले I want to ask, आपका जो Insta handle है, a lot of people pronounce it very wrongly. सब कुछ हो गया है. गुरमीत भी हो गया है, गवर्नमेंट भी हो गया है, गवर्नमेंट भी हो गया है, and बहुत कुछ. मतलब आप बताओ कि how do we pronounce? So you can say gourmet और gourmet, both are correct. So दोनों accent correct है. And इसकी अगर मैं story बताऊँ, तो it goes back to my school days. Okay. So in my school, I think 9th and 10th standard में state board, I come from a state board background. So हमें leaflet का एक आता था. So we have to write a leaflet. Leaflet में ऐसा रहता था कि so now there is a tourist place like Mahabaleshwar or maybe a Mathera. So how to go to that place? So all the WH questions are covered in that leaflet. How to reach, how to go, where is it located, what to try. Okay. So when it comes to food, so वहाँ पे वो भी रहता था कि what food you can try in Mahabaleshwar. Okay. So I was not a big time traveler at that time. एक 8-9 standard का बच्चा, तो उसको थोड़ी पता रहेगा कि कहाँ पे क्या मिलेगा. Correct. So कुछ चीजें का पता रहता था. अगर कभी घूमे हैं बचपन में या कोई फैमिली मेंबर गया है, so we know that अब महाबलेश्वर की चिक्की फेमस है, लोनावड़ा की चिक्की फेमस है, महाबलेश्वर का वो स्ट्रॉबेरी क्रीम इज फेमस, बट वो उस टाइम पे नहीं पता था. So my English teacher, she told us कि अगर आप कुछ भी नहीं पता है, just write gourmet food available. ठीक है, just write gourmet food available. एंड ब्लाइंडली मैं वो लिख देता था. बट एक बार क्या हुआ, मेरे से गलती हो गई एंड आई कुछ मैं उस इसमें नहीं लिखना चाहिए था गुरमे फूड अवेलेबल, मैंने लिख दिया. ऑब्वियसली मुझे मार्क्स नहीं मिले. और वो रहता है ना एक मेंटालिटी, ह्यूमन मेंटालिटी की गलती हुई तो चेक करना चाहिए कि क्यों गलती हुई है. तब जाके फिर मैंने, तब गूगल का जमाना इतना नहीं था, इतना डेटा भी अवेलेबल नहीं रहता कि फोन पे जाके चेक करो कि व्हाट इज गुरमे. सो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती थी, स्मॉल पॉकेट डिक्शनरी. फिर मैंने तब चेक किया कि गुरमे का मीनिंग क्या है. सो लाइक अ पर्सन हु लाइक्स गुड फूड, अ गुड कॉनाइजर ऑफ फूड. सो तब रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये मीनिंग इसका बहुत बड़ा मीनिंग है. एंड तब उस वर्ड का इंपॉर्टेंस पता चला. सो दैट वर्ड इज स्टक विद मी फ्रॉम देन. और कमिंग बैक इन 2017-2018, तो कभी प्लान नहीं था ये स्टार्ट करने का, बट जब फिर प्लान हुआ कि स्टार्ट करना है, दैट वन वर्ड केम वाज गुरमे. ओके. सो मुसाफिर इज लाइक आई एम मोर इनटू फूड एक्सप्लोरेशन. ओके. इंस्टेड ऑफ I would say there are many genres in content creation, specifically in food. So someone likes to explore street food. Someone likes to explore, say, recipe content. They create amazing recipes. Someone makes, say, DIY things. So बहुत अलग-अलग genres होते हैं. So my major genre which I wanted to explore and I would say learn was food exploration and would say gourmet food. To be very specific. But फिर this is how it went and फिर gourmet के नाम पे तो काफी और भी चीजें explore की. But I like 2020 से I would say I have
stick to gourmet food, I would say, or cafe or restaurant food, and not street food. Okay. Yeah. Okay. Yes. So coming back to your journey, the initial phase of your journey, I want to understand कि आप school time में कैसे थे? I was a very shy kid, but even though I was a shy kid, but I was more involved in school events as well. So events का जो बोल सकते हैं ना, ये एक liking और एक जो inbuilt था एक पहले से events के लिए. So I was a captain of my class, or would say एक third, fourth standard से continuously मैं 10th standard तक था. So वो एक involvement रहता है ना हर चीज का event का, वो पहले से था. But I was very shy, मतलब इतना interactive नहीं था. चेक कर देंगे, ये फिर से ले लेना बात. चलो कंटिन्यू करते जरा. हाँ, so I was हम आ जाएगा. Yeah, start. So I was not a very, I would say, इतना बहुत outspoken नहीं था. I was little shy, but I was very active in school. School के सारे exhibitions हो गए, science exhibition हो गया, या स्कूल का गैदरिंग होता है, एनुअल गैदरिंग होता है, इंटर सेक्शन इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशंस होती है, इंटर सेक्शन इवेंट्स. सो मैं काफी रिगरसली आई यूज्ड टू मैनेज थिंग्स इंस्टेड ऑफ पार्टिसिपेटिंग. आई वाज मोर इनटू मैनेजमेंट साइड. तो एक मैनेजमेंट का जो एक लाइकिंग था वो पहले से ही था बचपन से. ओके. यस यस यस. सो देन उसके बाद में हाउ डिड योर करियर शिफ्ट? हाँ, तो एक सभी बोल सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहिए. तो काफी सारे फैमिली सर्कल में इंजीनियर्स थे, तो पेरेंट्स को भी लगा कि इंजीनियर करना चाहिए. बट हाँ, मुझे साइंस की तरफ काफी अच्छा एक लाइकिंग था. आई यूज्ड टू लाइक साइंस अ लॉट. मैंने काफी सारे साइंस क्विज में भी पार्टिसिपेट किया. मैंने क्विज काफी किए स्कूल टाइम पे, कॉमन साइंस में. तो साइंस के अंदर लाइकिंग बहुत था, स्पेशली साइंस एंड मैथ्स बोथ. तो मुझे खुद को भी इंटरेस्ट था, स्पेशली इन मैथ्स. तो मजा आता था मैथ्स के प्रॉब्लम्स करने में. तो इसलिए मैंने 11th 12th एज अ चैलेंज आई टुक IIT JEE के कोचिंग. क्योंकि उनके क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग होते थे. और मैं 9th 10th स्टैंडर्ड से ही वो क्वेश्चंस आई यूज्ड टू डू दोस क्वेश्चंस, क्योंकि तब वो एक फेज आ गया था कि पीपल यूज्ड टू स्टार्ट देयर कोचिंग फ्रॉम 10th या 9th स्टैंडर्ड, एक फाउंडेशन जो बोलते हैं. सो मैं 9th 10th स्टैंडर्ड से फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया था फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो एज एवरीवन एक नॉर्मल इंजीनियरिंग किड मैंने भी वो एग्जाम्स दिए, JEE मेंस एंड एडवांस. Because of some reasons I couldn't get into IITs, but I was very happy and fortunate enough that I got VNIT. So VNIT was by choice I got. मतलब I had options, other NITs के भी options थे, but VNIT मेरे एक अंकल भी है VNIT से पास आउट, और काफी सारे फैमिली फ्रेंड्स और वो लोग भी VNIT के alumni रह चुके हैं. तो VNIT is one of the best institute in, I would say, Central India. And I'm a very proud alumni of VNIT. तो VNIT तब लिया. तो VNIT तब लिया, तब मुझे ब्रांच का ऑप्शन नहीं था. So ब्रांच मुझे तब मिली थी chemical engineering when I got into VNIT. So I got VNIT. So VNIT में जब मुझे एडमिशन मिली तो मुझे केमिकल इंजीनियरिंग मिला. Yes. So केमिकल इंजीनियरिंग. हाँ, मतलब मुझे लाइकिंग 11th 12th में इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्यादा था. इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने काफी एक्सिबिशंस में और काफी इसमें पार्टिसिपेट भी किया. तो उसका लाइकिंग काफी था. बट मुझे तब इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिल रहा था, तो केमिकल मिला. तो मैंने केमिकल ले लिया VNIT में. अब मैंने केमिकल लिया, बट कैसा होता है कि इन NITs और IITs you get an option of branch change after first year. So you have to work rigorously hard to get those grades. अगर आपके उतने ग्रेड्स आते हैं तो you get an option, अगर सीट्स अवेलेबल है तो बहुत लोग छोड़ के जाते हैं. कभी-कभी फिल अप नहीं होती है सीट्स even after the final rounds. So मुझे थोड़ा, मैंने एम किया था कि I will change the branch. बट जब मैं VNIT गया ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है व्हिच इज वेरी, आई वुड से, वेरी फैसिनेटिंग ब्रांच. फैसिनेटिंग इसलिए बिकॉज
अभी अगर हम लोग ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं पॉडकास्ट, इट इज बिकॉज ऑफ मटेरियल्स इंजीनियरिंग, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड दो सेमीकंडक्टर्स, दे हैव डेवलप्ड, उन्होंने इतना कॉम्पैक्ट कर दिया है सब कुछ। एक एप्पल की अभी एक आप देखो कि हर साल एक A15, A16, A17 बायोनिक चिप्स आती है, उसके ट्रांजिस्टर साइज इतने छोटे छोटे होते जा रहे हैं कि दे आर नाउ एबल टू ऐड मोर ट्रांजिस्टर्स, उसकी वजह से यू कैन डू मल्टीपल ऑपरेशंस, मल्टीपल टास्क एक स्मॉल डिवाइस पे। तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि वो एक एग्जांपल है। मैं अभी हम लोग बैठे हैं काउच पे, ये भी मटेरियल्स इंजीनियर ने डिजाइन किया है। सो आई वुड, मैंने हर जगह पे मटेरियल्स इंजीनियर आर वेरी वेल कनेक्टेड। सो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी वो फील्ड, एंड मैंने काफी प्रोफेसर से भी बात की। तो मैंने फिर आफ्टर फर्स्ट ईयर आई गॉट अ चांस टू अपग्रेड टू ऑलमोस्ट एनी ब्रांच ऑफ VNIT, बट आई चोज मेटलर्जी। हाँ, मेटलर्जी मुझे पहले भी मिल रहा था, बट तब मैंने केमिकल लिया था, बट मुझे मेटलर्जी अच्छा लगा, तो मैंने फिर मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग आई ऑप्टेड। सो फर्स्ट ईयर में तो कॉमन होता है, तो कोई ब्रांच स्पेसिफिक नहीं होता है। सो आई एंडेड अप एट मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग purely because of choice and liking. Okay, so you have finally completed your engineering? हाँ, engineering I completed in 2018. अच्छा. Yes, 2018 में मैंने engineering complete किया. 3 to 4 years बाद. 4 years, हाँ 4 years लगते हैं. तो अभी almost आप 4.5 years बोल सकते हो. Correct. So then how did this food blogging come into the picture? Okay, so food के लिए liking तो पहले से थी. I started cooking when I was 10. Okay. And I liked, मैं काफी सारे shows भी देखता था. NDTV Good Times पे. फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं शेफ्स एंड अमेजिंग होस्ट। सो वन ऑफ द होस्ट वाज विनोद दुआ जी, जिन्होंने जायका इंडिया का स्टार्ट किया था लेट इन 2000s, एंड रॉकी एंड मयूर, उनका हाईवे ऑन माय प्लेट करके बहुत पॉपुलर शो आता था, कवरिंग ऑल द ढाबाज एंड द रोड साइड प्लेसेस ऑन नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया। तो वो काफी देखा है, बट वही ना, इंजीनियरिंग का एक वो रहता है, एक वेव रहता है, तो उसमें इतना टाइम नहीं दे पाते आपके हॉबीज एंड वो सब चीजों के लिए, तो तब इतना टाइम नहीं दे पाया। बट जैसे ही मैं VNIT एंटर किया ना, तो अगेन सो मैं जैसे स्कूल टाइम से ही मैनेजमेंट साइड में ज्यादा इन्वॉल्व था, इन स्कूल गैदरिंग्स एंड एग्जीबिशंस एंड ये सब। सो VNIT में भी जैसे एंटर किया, तो VNIT में एंटर्ड इनटू इवेंट्स वर्ल्ड। सो दैट वाज एक्चुअल इवेंट्स वर्ल्ड वेयर डूइंग, आप खुद पूरा इवेंट कर रहे हो, आपको कोई पीछे सपोर्ट नहीं है। So there is no props involved, सब कुछ स्क्रैच, पैसे भी आपको रेस करना है, स्पॉन्सर्स भी आपको लाना है, गेस्ट भी आपको बुलाने हैं, इवेंट डिजाइन भी आपको करना है। तो वो इवेंट्स वर्ल्ड जो बोल सकते हो, एक दैट आई एंटर्ड इनटू VNIT। तो VNIT के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैंने इवेंट्स में ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में इन्वॉल्व होना शुरू किया। तो उसमें भी माय मोर इन्वॉल्वमेंट वाज इनटू हॉस्पिटैलिटी साइड। सो वी डिड मेनी कॉन्सर्ट्स इन VNIT, जैसे टू नेम सम ऑफ देम। So we did Papon. So Papon का हुआ था इवेंट, so मैं hospitality में था उनके। Then I did, we together did, sorry ये कट करना, मुझे एकदम से नाम अभी क्लिक क्यों नहीं हो रहे। हाँ, so we together did Kenny Sebastian, Daniel Fernandez, Local Train काफी पॉपुलर बैंड, इन स्पेशली यूथ। So सबका hospitality I used to take care of. Pro shows and hospitality. Zakir Khan was one of the biggest concert जो हमने किया था, stand up event जो VNIT में। So Zakir sir के टाइम में एक इंसिडेंट हुआ था कि he wanted to have a good biryani of Nagpur. So तब मैंने सही में मतलब देखा यार सबसे बेस्ट बिरयानी कहाँ मिलती है। मैं वेजिटेरियन हूँ, so मुझे इतना बिरयानी का आइडिया नहीं था। मैंने 10 लोगों को पूछा, बट प्रॉपर इधर ऐसा कोई चैनल नहीं था या कोई ऐसा नहीं था, पोर्टल नहीं था कि वेयर आई कुड सर्च। और गूगल पे तब इतना SEO डेवलप भी नहीं हुआ था लोगों का कि गूगल पे मैं सर्च करूं बेस्ट बिरयानी ऑफ नागपुर और मुझे आ जाए। कि डेटा कलेक्ट नहीं हुआ था बेसिकली, अगर डेटा कलेक्ट होगा तो आ गया रहता एवरीथिंग। तो तब मुझे वो हिट हुआ था एक चीज कि यार कुछ ये यहाँ पे कुछ है, एक देयर इज अ वैक्यूम इन दिस स्पेस। तो आई रियलाइज कि फूड इज दैट वन थिंग व्हिच कनेक्ट्स पीपल टुगेदर। सो नॉट ओनली विद जाकिर सर, बट हम जो भी हमारे गेस्ट आते थे कि हम उनको नागपुर का ऑरेंज बर्फी हो गई, वी यूज्ड टू गिव देम एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। हमारे मेहमान, सो ये इंडिया का ब्यूटी है। सो एनी गेस्ट आपके घर में भी अगर आते हैं या कहीं पे भी, एनी इवेंट इन स्कूल और कॉलेज, एनीथिंग, सो वी हैव दिस कल्चर अतिथि देवो भव।
so Incredible India, and we would like to host them and we are very happy to host them. Correct. तो वो एक चीज तब से ना डेवलप हो गई थी. I would say habit, or would say in part of my journey started from that particular event of VNIT. तो VNIT हमारे यहाँ पे एक एक्सेस होता है टेक्निकल फेस्टिवल और ROE होता है कल्चरल फेस्टिवल. सो दोनों इसमें ये चीज मैं सीख पाई. जैसे एक्सेस का अगर मैं नाम लूँ तो उसमें ना हम टेक्निकल इवेंट होता है, तो उसमें लंदन ओलंपिक्स के एक परफॉर्मर थे ऑफिशियल करके. सो ही केम टू VNIT. सो मैंने उन्हें देखा था टेक फेस्ट IIT बॉम्बे में. तब हम सबको इच्छा थी कि यार समवन लाइक हिम शुड कम टू VNIT. सो इज अ DJ percussion artist. Okay. Yes, तो काफी बढ़िया उनका एक सेगमेंट है. सो ही हैज इन्वॉल्व्ड टेक एंड म्यूजिक टुगेदर. Okay. हाँ, तो वो चीज वो इवेंट हमने किया. आई वाज बैक देन आई थिंक 20 years old, 19-20 years old. सो अब फॉरेनर को एक he came from London. अब उनको क्या खिलाए सबसे बड़ा कि it should not be spicy, it should not be very like very sweet, because हम थोड़ा ना डेजर्ट कॉन्शियस पहले से है वो लोग. स्वीट कॉन्शियस काफी रहते हैं वो लोग. सो वो ना चीजें एक एक धीरे धीरे ना ये सब सीख पाई इन हॉस्पिटैलिटी. तो अब थोड़ा और आगे जाए तो फाइनल ईयर में आई वेंट टू इंटर्नशिप एट IISc बैंगलोर. सो IISc बैंगलोर में मेरा 2.5 months का इंटर्नशिप था. वेरी रिगरस इंटर्नशिप विद बोइंग इंडिया. तो उसमें मंडे टू फ्राइडे बहुत हेवी वर्क होता था. देयर वर नो स्पेसिफिक टाइमिंग्स. सो हमें 2 बजे भी लैब जाना पड़ता था, 3 बजे भी जाना पड़ता था, सुबह 5 बजे जाना पड़ता था टू डू द रिसर्च. तो सैटरडे संडे हमें प्रॉपर ऑफ मिलता था. तो सैटरडे संडे बैंगलोर में मी एंड माय वन फ्रेंड हम लोग घूमना स्टार्ट किए. सो वी यूज्ड टू टेक ज़ूम कार, और ज़ूम कार से हम लोग बैंगलोर के आजू बाजू बहुत अच्छे स्पॉट्स है, वी यूज्ड टू एक्सप्लोर दैट. तो वो जैसे कैजुअली तो ओला आउट स्टेशन और ज़ूम कार, आई रिमेंबर उस टाइम पे जस्ट वो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था. तो एक मैसूर है, सो मैसूर है, बानागट्टा है, एक नंदी हिल्स करके स्पॉट है. तो वो ये सब चीजें एक्सप्लोर करने के बाद ना आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट दोस प्लेसेस ऑन गूगल गाइड्स. गूगल गाइड्स तब जस्ट बोल सकते हो इमर्जिंग था और लोग देखते थे. अभी तो वीडियो वगैरह भी ऐड कर सकते हो. उस टाइम पे हम लोग सिर्फ लिखते थे अबाउट द एक्सपीरियंस एंड फोटो ऐड करते थे. दैट्स इट. तो ये मेरे फाइनल ईयर का ही टाइम है 2017. तब इंस्टा पे इवन स्टोरीज का ऑप्शन भी नहीं था. इंस्टा वाज वेरी रॉ एट दैट टाइम. लोग फोटो डालते थे, इवन करोजल पोस्ट भी नहीं रहता था, उस ऑप्शन ही नहीं था ये सब चीजों का. फिर मैं वापस इंटर्नशिप खत्म हुई, फाइनल ईयर कंप्लीट करने VNIT आए. जो एक हम ये तो समर इंटर्नशिप थी, समर में गए थे. फाइनल 7-8 जो होता है 7 and 8 वो कंप्लीट करने गेम टू VNIT. तो VNIT में वर्डप्रेस करके ना काफी चल रहा था. लोग वर्डप्रेस पे ना ये लिखते थे, ब्लॉग्स लिखते थे. बट फूड के ब्लॉग्स पे ना वर्डप्रेस पे मजा नहीं आता था. वर्डप्रेस वाज अ वेरी थ्योरेटिकल थिंग, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस. बट फूड में जब तक आप विजुअल्स ना दिखाओ नहीं समझ आता है. अब मैं एग्जांपल लूं तो अगर चीज है, ठीक है, अब चीज में वो चीज बर्स्ट ऊजिंग आउट, जब तक आप वो देखते नहीं हो विजुअली वो डोपामाइन इफेक्ट नहीं होता. वो जब तक आपको हिट नहीं करता है ना, वो इच्छा नहीं होती है देखने. तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि इंस्टाग्राम कुड बी दैट स्पेस. एंड नागपुर में तब कल्चर शुरू हो गया था. देयर वर क्रिएटर्स ऑन नागपुर, टू नेम सम ऑफ देम, जैसे टंग एंड सीजर थे, पार्थ बजाज वाज वन ऑफ देम. तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया था उस टाइम. सो इवन आई स्टार्टेड फाइनल ईयर में 2018 Jan टू बी वेरी प्रिसाइज. पेज पहले बना लिया था जस्ट ऐसे ही, मतलब बनाने के लिए. बनाने से अच्छा जस्ट टू रजिस्टर दैट हैंडल नेम. जैसे वेबसाइट डोमेन के लिए रहता है ना, तो वो डोमेन मैंने ब्लॉक कर दिया था मेरा. हाँ, हैंडल नेम मैंने ब्लॉक कर दिया था फॉर मुसाफिर. एंड वो फिर ऑफिशियली Jan 2018 में स्टार्ट हुआ. Okay. Yes. So then how was your journey उसके बाद से धीरे-धीरे ग्रोथ कैसा रहा है उसके बाद? So initially when I started Jan 2018 to be very precise, तब कल्चर धीरे-धीरे डेवलप हो रहा था नागपुर में. और बाकी
टियर 1 सिटीज में ऑलरेडी था, वैसे बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, तो ये सब में ऑलरेडी ये सब चीजें थी कि फूड ब्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, फूड क्रिटिक्स, ये सब उससे इंडस्ट्री वाज एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम और नागपुर के लिए बहुत न्यू था ये सब. So March 2018, I got an invitation for Food Bloggers Award. So there is a association in India, Indian Food Bloggers Association. Okay. तो वहाँ पे उनका होता है Food Blogger Award होता है, FBAI. तो ये इवेंट था JW Marriott Juhu, March 2018. I went from Nagpur. तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि this industry actually exists. Correct. कम्युनिटी आपने शायद पहली बार इतनी बड़ी कम्युनिटी देखी. I saw food photographer, I saw food stylist, okay. I saw Food chefs stylist as in the one who styles the food. Okay. हाँ, ये मेरे लिए बहुत न्यू था. मैं क्योंकि वो कैटेगरी एग्जिस्ट थी वहाँ. Correct. मतलब वो नॉमिनेशन था उस टाइम पे फूड स्टाइलिस्ट ऑफ द ईयर. तो तब मैंने देखा कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है एंड इट्स एक्चुअली अ वुड से प्रोफेशन. करेक्ट. कि लोग इसको फुल टाइम परस्यू कर रहे हैं. अब VNIT से जब मैंने इंजीनियरिंग किया तो मैंने GRE दे के रखा था. मेरा पूरा बैकग्राउंड रिसर्च बैकग्राउंड ही है. आई हैड लाइकिंग फॉर मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियर जो है उसमें मैंने ऑलरेडी GRE दे के रखा था और सब यूनिवर्सिटीज मैंने चूज करके रखे थे कि बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस मैंने रियलाइज किया कि फाइनल ईयर जब मेरा खत्म हो रहा था कि लेट्स गिव 1 ईयर फॉर दिस. लाइकिंग है, एक्साइटिंग फील्ड है, ऑलरेडी GRE तो दे के रखी है और बैकअप काफी स्ट्रांग था उस टाइम पे कि अगर कुछ नहीं भी हुआ तो यार आई कैन गो टू गुड यूनिवर्सिटी एंड आई कैन परस्यू अ PhD इन दैट. वही मेरा फुल टाइम मतलब मेरा प्लान था उस टाइम पे. तो वही डिसाइड किया एंड जैसे इंजीनियरिंग मई में कंप्लीट हुआ तो जुलाई मंथ इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड आइसक्रीम मंथ. तो तब मैंने फर्स्ट मेरा फूड इवेंट किया इंडिविजुअली. यस, एट चिटनवी सेंटर. दैट वाज आइसक्रीम फेस्टिवल. सो वी ब्रॉट 8 to 10 different varieties of ice cream. When I say varieties, so we had that roller coaster ice cream जो बचपन में बनती थी. We had Parsi kulfi. We had bubble waffle ice cream. We had ice cream tacos. We had tawa ice cream. फिर nitrogen ice cream. तो अलग अलग वैरायटीज के आइसक्रीम थी फ्रॉम ऑल डिफरेंट ब्रांड्स एट वन प्लेस चिटनवी सेंटर में. तो वो इट वाज अ लाइक फन इवेंट करना था. वी वर एक्सपेक्टिंग अराउंड 1000 पीपल बट वो कुछ ज्यादा ही रिस्पांस आ गया एंड वो 3500 लोग आ गए एंड इट वाज सिंगल डे इवेंट, नॉट इवन अ 2 days इवेंट. आई थिंक दैट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नागपुर. एंड इवन इंडिया में भी ना बहुत कम हुआ था. हुआ था इसके पहले चंडीगढ़ और दिल्ली में भी हुआ था आइसक्रीम का कुछ स्टॉल्स का इवेंट हुआ था बट ऐसा एक प्रॉपर इवेंट नहीं हुआ. उस टाइम पे स्विगी केम एज माय टाइटल स्पॉन्सर. सो मुझे इवेंट का बैकग्राउंड होने की वजह से स्विगी जस्ट नागपुर में लॉन्च कर रहा था उस टाइम पे. सो हमने स्विगी को बोला फॉर टाइटल स्पॉन्सरशिप एंड स्विगी केम एंड वी डिड दिस इवेंट टुगेदर एंड बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ. और फिर और चीजें समझी कि फूड कंटेंट क्रिएशन तब इवन उस टाइम में ना कंटेंट क्रिएटर ये वर्ड नहीं पता था. करेक्ट. बट तब रियलाइज हुआ कि कंटेंट क्रिएशन एज अ फील्ड इज वेरी वास्ट. और अब थोड़ा आगे जाओ तो TOI का एक एडिशन आता है टाइम्स हैंगआउट कर. तो उसमें आई गॉट फीचर्ड एट एज अंडर 30 प्रोफेशनल्स इन फूड इंडस्ट्री. हॉस्पिटैलिटी from Nagpur itself? हाँ, फ्रॉम नागपुर itself, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अंडर 30 में. Okay. So उसमें I got featured as under 30 professional. दे तो फिर और थोड़ा बूस्टअप आता है ना. फैमिली वालों को भी थोड़ा सा एक दिखाने के लिए कुछ दिख जाता है. अरे कुछ तो कर रहा है. उस टाइम तक उनको भी आइडिया नहीं था ना. फैमिलीज को ये सब नहीं समझता था कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, फूड ब्लॉगिंग क्या होता है. तो एक वैलिडेशन रहता है. मेरे पेपर में आ गया ना तो इट्स कुछ तो कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है. ये again with the titles like Times of India. हाँ, तो वो एक वैलिडेशन मिल गई. और थोड़ा आगे जाओ तो फिर एक और इवेंट किया डॉन पोटैटो. दैट वाज इन दिसंबर. एक विंटर इवेंट बोल सकता हूँ.
दैट वाज अ बिग फेलियर फॉर मी Okay. एंड मैं वेरी हैप्पी कि वो हुआ इवेंट और वो फेल हुआ. अगर वो इवेंट फेल नहीं होता ना तो आई कुडंट हैव डिसाइड माय ट्रैजेक्टरी ऑफ लाइफ. Okay. इट वाज अ टर्निंग पॉइंट आई वुड से. उसके बाद से बहुत गलतियां जो कि मुझे समझा कि क्या गलतियां हो सकती है. वो इवेंट हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रमोट किया. तो जो चीजें हमें गलतियां हुई कि कैसे प्रमोट करना चाहिए था एंड किस टाइप से प्रमोट करना चाहिए था, लोगों को नहीं समझा, इवेंट ही नहीं समझा क्या है. तो उसके बाद कर्ली टेल्स वाज pioneer digital media platform at that time 2018 की बात है. तो मैंने just after this event I started applying to Curly Tails in any scope, like any capacity, any scope. I just wanted to join that company and work over there as an intern or I would say So employee. Curly Tail is a company. It's a company. It's a registered company. So they are based in India and Dubai both, Middle East I would say now. तो उनका मुंबई इज हेड ऑफिस. सो मैंने अप्लाई करना शुरू किया. मुझे भी नहीं पता था कि दे हैव अ ऑफिस इन बॉम्बे एंड दुबई उस टाइम. एंड मैंने बहुत कोल्ड ईमेल्स किए. मैंने ऑलमोस्ट 3 महीना किया रिगरसली. तब जाके फिर वन ऑफ द एम्प्लॉइज इन कर्ली टेल्स शी नोटिस्ड माय वर्क और फिर मुझे कॉल आया कि हमें आपका ये आया था मेल. So we would like to schedule a HR interview first. Okay. तो प्रॉपर HR इंटरव्यू हुआ. मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा उन्होंने क्या है. तो मेरा फूड इवेंट्स में थोड़ा था क्योंकि एक इवेंट सक्सेसफुल हुआ, एक फेल हुआ. तो दोनों एक्सपीरियंस था मेरे पास, एक सक्सेस का भी और फेल का भी. तो वो मैंने फ्रैंकली बता दिया, ऑनेस्ट. एंड उनको अच्छा लगा. तो मेरा एक और इंटरव्यू राउंड शेड्यूल हुआ विद द मैनेजर. सो उनको भी अच्छा लगा. तो फिर फाइनल इंटरव्यू शेड्यूल हुआ विद जो फाउंडर है कर्ली टेल्स के, काम्या जानी. सो उन्होंने प्रॉपर एक इंटरव्यू लिया कॉल पे एंड दे लाइक माय वर्क. कुछ केस स्टडीज दी थी मुझे प्रेजेंट करने के लिए. तो वो मैंने प्रेजेंट किए एंड आई जॉइन कर्ली टेल्स इन मुझसे ऑफिशियली May 1st को ज्वाइन किया मैंने. May 1st 2019 as a events and social media curator. Okay. So my forte, मतलब my designation was events and social media executive at Curly Tails. Okay. I started with India, but first month में के बाद ही मुझे दुबई का भी उन्होंने दे दिया चार्ज for India and Dubai both. So मतलब here comes that तुम्हारा काम was really very nice, इसलिए फिर उन्होंने इतनी जल्दी प्रमोशन दे दिया. और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उन्होंने. मे बी टेस्ट भी करना होगा शायद. एंड काम भी अच्छा लगा टीम को. एंड सो जब मैं कर्ली टेल्स ज्वाइन किया, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज पानीपुरी फेस्टिवल. ओके. सो पानीपुरी फेस्टिवल वी डिड एट आरसीटी मॉल एट घाटकोपर. सो जहाँ पे जैसे मैंने आइसक्रीम का बताया, तो वी हैड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पानीपुरी. ओके. सो वी हैड मैंगो पानीपुरी जिसमें आमरस जा रहा है प्रॉपर और उसमें आलू वालू कुछ नहीं है. देयर आर मैंगो पीसेस जा रही है, मैंगो पीसेस में आमरस जा रहा है. सो इट्स लाइक अ डेजर्ट. देन चाटशाला केम फ्रॉम नागपुर. तो चाटशाला केम अप विद नॉन अल्कोहलिक बियर पानीपुरी, रबड़ी गुलाब जामुन पानीपुरी, स्निकर्स पानीपुरी और ये सब चीजें उन्होंने तब लाई. ओके. तो दैट वाज द ओनली ब्रांड व्हिच केम फ्रॉम नागपुर. बाकी प्रॉपर बॉम्बे के थे साथ. देयर वाज पानीपुरी, पाव भाजी पानीपुरी, इसमें पाव भाजी की ग्रेवी जा रही है एंड दैट मसाला, रॉ मसाला इज गोइंग इनसाइड. इट इज मैक एंड चीज पानीपुरी. मैक्रोनी जा रहा है एंड चीज ग्रेट करके ब्लो टॉस से उसको चीज को मेल्ट करके दे आर सर्विंग. तो ऐसे अलग-अलग 15 डिफरेंट स्टॉल्स थे. तो वो बहुत ही बड़ा एक बोल सकते हो लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए. फॉर इन अ टायर 1 सिटी फूड इवेंट करना, उसको कैंपेन भी पूरा किया, इवेंट सेटअप भी किया एंड इवन स्टॉल्स ऑनबोर्डिंग से लेके कंप्लीट एग्जीक्यूशन तक. तो दैट वाज माय फर्स्ट प्रॉपर इवेंट. उसके बाद फिर दुबई का भी चार्ज आ गया एंड मैं आई हैड टू क्यूरेट एंड कंटेंट फॉर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे क्या जाना चाहिए, वो सब वो चीजें आती थी. तो इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस एट कर्ली टेल्स.
I was there for almost 6-7 months and उसके बाद फिर due to some family reason मुझे नागपुर वापस आना पड़ा. बट जब मैं वापस भी आया तो हमने ट्राई किया, तब वर्क फ्रॉम होम कल्चर था ही नहीं इंडिया. ये मैं प्री कोविड की बात कर रहा हूँ. बट स्टिल हमने 1 महीना ट्राई करके देखा वर्क फ्रॉम होम. तो यहाँ पे बैठ के काम कर रहा था और कर लिया. बट इट वाज नॉट एबल टू मैनेज. उस टाइम पे मैनेज नहीं हो पा रहा था. तो for that reason I had to resign और मैंने फिर पेपर्स डाल दिए. बट कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था छोड़ने का अर्ली डेज. आई वाज वेरी हैप्पी इन दैट कंपनी एंड काफी लर्निंग एक्सपीरियंस था. सम हेल्थ रीजंस थे फैमिली के, तो उसके कारण वापस आना पड़ा. एंड दिस इज आई वुड से अराउंड सितंबर अक्टूबर की बात है. ये अक्टूबर नवंबर बोल सकता हूँ 2019 एंड प्री कोविड. एंड फिर टिकटॉक वाज एन इमर्जिंग फील्ड एट दैट टाइम. टिकटॉक जस्ट इंडियन मार्केट आ गया था 2019 में. काफी अच्छे से एस्टैब्लिश कर चुके थे वो लोग. सो टिकटॉक के तरफ से दे अप्रोच्ड अस. उनके तरफ से एक प्रॉपर उनके जो पार्टनर मैनेजर होते हैं कि उन्होंने बोला कि आप टिकटॉक पे क्रिएट करना शुरू करो कंटेंट. विल हेल्प यू इन द सेंस कि किस टाइप का कंटेंट जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट पता ही नहीं था किसी को. रील्स तो बहुत बाद में आया. टिकटॉक पे जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं 30 सेकंड्स के 15 सेकंड्स के, ये पता ही नहीं था. कि हम लोग फोटोज वीडियोस पे ही पूरा बनाते थे. इंस्टा पे कैरोसेल पोस्ट जाता था या आईजीटीवी जाता था. ये नहीं पता था कि क्या जाना चाहिए. मतलब पूरी पिक्चर आपको 30 सेकंड में दिखाना है. एंटायर ड्रामा यू हैव टू शो इन दैट स्मॉल वीडियो फॉर्मेट. तो दे हेल्प्ड अस कि किस टाइप का कंटेंट जाना चाहिए. एंड वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि वी got to interact with all the amazing food creators of India. So you were approached by TikTok. Food industry के लिए? Food content creation के Okay. food में. तो उसमें हमारे नागपुर के भी जैसे अभिनव was also part of it. रुचिका was there. Chef संजीव कपूर was also in that group. रणबीर ब्रार थे. और भी काफी अमेजिंग क्रिएटर्स थे फूड के कि जो उसका एक पार्ट है. बट वो एक कहते हैं ना स्टिग्मा था लोगों के दिमाग में, सोशल टैबू बोल सकते हैं कि टिकटॉक इज नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म, नॉट अ गुड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. बिकॉज जो हम क्रिएट कर रहे थे कंटेंट, जो आप अभी कंज्यूम कर रहे हो रील पे, वही चीज हम क्रिएट कर रहे थे और वो कंज्यूम हो रहा था. अब एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं, जो कंटेंट आप देखना चाहते हो वही आपको एआई दिखाएगा. वो इट्स नॉट अ ह्यूमन और अ पर्सन कि आपको वो कोई फोर्स कर रहा है दिखाने के लिए. आप जो कंज्यूम करोगे, आप जो अगर आप 1-2 सेकंड भी देखते हो, आप जिसके साथ इंटरैक्ट करते हो, वही कंटेंट आपको दिखता है. अगर आपको वो कंटेंट पसंद नहीं था या नहीं है तो यू कैन रिपोर्ट इट और यू कैन गो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कंटेंट. और वो ऑप्शन पहले से है ऑन इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सभी पे. यू कैन रेस्ट्रिक्ट और यू कैन शो योर डिसइंटरेस्ट कि आपको नहीं पसंद वो कंटेंट. तो वो टिकटॉक वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर अस. और बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करने को मिला टिकटॉक के साथ. इंस्टा तब चल रहा था, इंस्टा तो चल ही रहा था पैरेलली. वो ऑटो मोड पे था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो ऑटो मोड पे चल रहा था. एंड फिर कोविड आ गया. तो कोविड के टाइम पे ऐसा लगा कि मेरा तो जो है ना प्योरली फूड एक्सप्लोरेशन है. मैं तो रेसिपीज भी नहीं बनाता हूँ, तो कैसे ये सब चीजें हो पाएंगी. बट कोविड वाज आई थिंक द टर्निंग पॉइंट फॉर द कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री इन इंडिया. मेनी अमेजिंग क्रिएटर्स वेर बॉर्न एंड इवन मेरा एक इंटरेक्शन और वुड से अ जर्नी विद इंस्टाग्राम स्टार्टेड इन कोविड. कोविड जस्ट प्री कोविड बोल सकते हो. सो इंस्टा के ना इवेंट्स होते हैं इन मेनी अदर कंट्रीज, बट इंडिया में कोई इवेंट्स नहीं होते थे. कुछ भी नहीं होते थे. उनका एक ऑफलाइन इवेंट हुआ IGX इंडिया 2019 में महालक्ष्मी में बॉम्बे. तब मुझे बहुत इच्छा थी यार, इंस्टा का इवेंट हुआ है, जाना चाहिए था. कर्ली टेस्ट वाज इनवाइटेड एट दैट टाइम, बट मैं तब नागपुर में था. आई वाज वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उस टाइम. तो आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट इवेंट.
बट ऐसा लगता था कि एक कभी ना कभी एक फ्यूचर में कभी चांस मिले कि इंस्टा के इवेंट में भी जाके Correct. एक पार्टिसिपेट करूँ एटलीस्ट। तो जैन 2020 में इंस्टा के ही एक पार्टनर क्रिएटर है, सो उनका एक मैसेज आया प्रॉपर कि एक इंस्टा का इवेंट हो रहा है, बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम, वी आर लॉन्चिंग। सो बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम में वी वुड लाइक टू इनवाइट यू, एक सेशन है विद अमेजिंग क्रिएटर्स अराउंड एंड जो इंस्टा के ही मैनेजर्स है, तो उसमें हम आपको थोड़ा सा एक एजुकेशन भी देंगे किस टाइप का कंटेंट बनना चाहिए, माइक कैसा यूज करना चाहिए इफ यू आर यूजिंग एक्सटर्नल माइक्स, तो हम प्रॉपर आपको गाइड करेंगे। तो वो पहला ऑफलाइन इवेंट था जो कि हैदराबाद में हुआ। तो आई वेंट टू दैट इवेंट, नागपुर से आई वाज द ओनली वन जो कि वेंट टू दैट इवेंट। सो इट वाज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू इंटरैक्ट विद टियर 1 सिटी क्रिएटर्स एंड बहुत कुछ सीखने मिला। वो प्रोग्राम जो दैट वाज बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम वाज अ प्रोग्राम, सो उसमें वो लोग और एजुकेशन वीडियोस सब देने वाले थे और एक्टिविटीज वो प्लान करने वाले थे, बट कोविड हो गया तो दे हैड टू शिफ्ट दैट एंटायर प्रोग्राम ऑनलाइन। सो बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम कंप्लीटली वेंट ऑनलाइन। सो इंस्टाग्राम ने तब डेडिकेटेड एक पार्टनर मैनेजर दिया हमको, सो who used to call us every week, कैसा चल रहा है आपका इंस्टाग्राम, क्या इश्यूज आ रहे हैं, how can you Somebody improve? will assist you. Correct. अब हमें इतना डेटा इंसाइट्स नहीं पता रहते, उनको उनके पास और used to tell us with data कि इतना आपका इंटरेक्शन रेट था, ये आपका एंगेजमेंट रेट था, ये आपने ऐसा करना चाहिए, तो दे used to help us. तो कोविड में वो बहुत एक अच्छा एक जो बोल सकते हैं इंस्टाग्राम के साथ जर्नी स्टार्ट प्रॉपर। सो मैं तो आज भी बोलता हूँ कि आई एम बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम, एक्चुअली बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम। So everything that you have achieved till date is only because what you have curated on इंस्टाग्राम, करेक्ट। तो मैं जर्नी स्टार्ट हुई इंस्टाग्राम के साथ। तो जब लॉकडाउन लगा, सो मैंने ऑनलाइन गेस्ट लेक्चर सीरीज स्टार्ट की। सो पहले ना आई थिंक एक 18-20 डेज का लॉकडाउन था। सो व्हाट आई डिड इज 18 पीपल, सो 18 डेज 18 पीपल 18 स्टोरीज। Okay. सो आई इनवाइटेड इंस्टाग्राम लाइव पे, लाइव एकदम बूम पे आ गया था ना तब कोविड के टाइम। तो एकदम मैं लॉकडाउन के स्टार्टिंग के डेज की बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन जस्ट लगा, लोग घर पे है। सो आई इनवाइटेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट जॉनर्स, कोई शेफ है, कोई एक सोशल एक्टिविस्ट है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई रेडियो जॉकी है, कोई ट्रैवलर है, कोई एक्ट्रेस है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को बुलाया एक दिन। सो 18 पीपल 18 डिफरेंट स्टोरीज दे शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम। So you went live. लाइव हुआ ये प्रॉब्लम। सो कंबाइन लाइव आता था ना तब, पहले सोलो आता था, Correct. फिर ये फीचर आया तो वी वेंट लाइव टुगेदर। ये मैंने प्रॉपर एक बोल सकता हूँ इवेंट काइंड ऑफ पोस्ट किया फॉर 18 डेज जस्ट टू कीप पीपल एंगेज्ड। एंड मुझे एक और चीज रियलाइज किया ना कि कोविड में लोगों को स्पेशली यंगस्टर्स, उनको करने के लिए कुछ नहीं था। उनको ये लगता था कि यार अब से फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई हॉबी है, यू हैव अ हॉबी ऑफ से पेंटिंग, यू हैव अ हॉबी ऑफ से सिंगिंग और मे बी, तो यू हैव सम एक्टिविटी जो आपके लीजर टाइम में आप कर रहे हो। बट कुछ ऐसे भी लोग थे कि उनको लगता था कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो एक ना वो एक डिप्रेशन वाला फेज आने वाला था, आया नहीं था बट आने वाला था बच्चों में, स्पेशली यंगस्टर्स, क्योंकि इंस्टा पे मैक्सिमम यंगस्टर्स है। तो वो मैं चाहता था कि ये सिर्फ आपकी स्टोरी नहीं है, सब लोग ही उसके थ्रू जा रहे हैं। इवन दिस पीपल 18 पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, वो लोग भी घर पे ही है, वो लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं बट घर पे है वो लोग, आपके जैसे आइडियली है उस टाइम पे। देयर इज नथिंग टू डू, आप बाहर नहीं निकल सकते हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, सब घर पे बैठ के करना पड़ रहा था उस टाइम। वो एक हुआ फेज। उसके बाद ऐसा हुआ कि इंडिया का क्रिकेट के साथ बहुत बड़ा प्यार है, सो आईपीएल भी नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि हाउ कैन आई इंटीग्रेट आईपीएल एंड फूड टुगेदर। सो आई केम अप विद फूड आईपीएल। सो मैंने हर स्टेट को एक डिश नॉमिनेट की, जैसे दिल्ली की दाल मखनी थी, नहीं पंजाब की दाल मखनी थी, दिल्ली के छोले भटूरे, मुंबई की पाव भाजी, इंदौर का इंदौरी पोहा। तो ऐसे मैंने 8 टीम्स बनाई
एंड अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए वो डिश। तो इंडिया हैज दिस ब्यूटीफुल कल्चर ना, आप 100 किलोमीटर्स पे एवरी 100 किलोमीटर्स फूड चेंज होता है। Yes. So every state has their USP and that particular dish. तो वो मैंने एक फूड IPL कॉन्टेस्ट किया। So वो एक प्रॉपर 14-20 डेज का था। जैसे वीकेंड्स पे वी यूज्ड टू हैव डबल हेडर मैच। तो उसमें बेसिकली यू हैव टू जैसे 7 बजे मैच शुरू होती थी, तो 7 o'clock वोटिंग शुरू होता था एंड यू हैव टू वोट योर फेवरेट डिश। एंड एग्जैक्ट 11 बजे हम क्लोज कर देते जैसे मैच खत्म होती थी, 4 hours। Nice. एंड 11 बजे जिसका सबसे ज्यादा वोट है तो फिर वो एक पॉइंट्स टेबल बनता था। सो 2 ग्रुप्स थे, तो फिर 2 ग्रुप्स के जो बेस्ट 4 थे उनके साथ फिर सेमीफाइनल फिर फाइनल। तो ये एक फूड IPL हुआ, वो बहुत ज्यादा हिट हो गया। सो वो ना बहुत सारे न्यूज चैनल्स और न्यूज पब्लिकेशंस के भी नोटिस में आया, इवन इंस्टाग्राम के भी नोटिस में आया। इंस्टाग्राम TV। फिर और ये खत्म हो गया, अब मेरे पास और फिर करने के लिए कुछ नहीं था। तो ना AI फिल्टर्स जो थे वो बहुत ट्रेंड पे थे। एक गेस द गिब्रिश भी बहुत फेमस हो गया था इंस्टा पे कि गिब्रिश वर्ड्स थे एंड यू हैव टू गेस कि वो क्या है। तो मैंने बोला ये तो हम फूड में कर सकते हैं। तो मैंने ना ऑनलाइन काफी उसका स्टडी किया कि फिल्टर्स कैसे बनते हैं। तो मेटा का ही सॉफ्टवेयर है, उस टाइम में तो फेसबुक हुआ करता था, मेटा नहीं था। तो फेसबुक का ही सॉफ्टवेयर है स्पार्क। तो हमने स्पार्क पे वो सीखा, मैंने वो कैसे बनते हैं फिल्टर्स। सो आई मेड एक बेसिक फिल्टर पहले बनाया कि which is the first dish which you will try after lockdown. Okay. Unlock के बाद, बट वो कभी हुआ ही नहीं अनलॉक, वो लॉकडाउन चल ही रहा। फिर दूसरा मैंने फिल्टर बनाया एक स्टे होम स्टे सेफ। इवन अभी भी आप मेरे इंस्टा पे देखो तो वो फिल्टर दिखेंगे आपको सारे फिल्टर्स हैं अभी। फिर एक और किया कि नेम अ डिश बाय अ लेटर, जैसे AR है ABCDEFGH, तो एक कंटिन्यूअस मूवमेंट रहेगा लेटर्स का, एक लेटर आएगा और उसके बाद अगर A आता है तो यू कैन नेम अ लेटर बाय लाइक एप्पल पाई। ओके। सो वो इंटरैक्टिव था, लोग यूज कर रहे थे। फिर मुझे कॉन्फिडेंस जब अच्छा डेवलप हुआ कि यार कुछ और अच्छा कर सकते, तो अब मैंने गेस द गिब्रिश फूड वाला लॉन्च किया। इनिशियली स्लो था, मतलब गिब्रिश, बट वो एकदम से ऐसा बूम हुआ। पीपल आर यूजिंग इन नाइजीरिया, पीपल आर यूजिंग इन अफ्रीका, पीपल आर यूजिंग इन ऑस्ट्रेलिया। पैंडेमिक था, घर पे थे लोग, और वो बहुत, तो जिसमें आपको गेस करना था कि वॉफल को मैंने जंबल अप करके गिब्रिश लैंग्वेज में बोला था, चीज केक था, तो ये सब चीजें। तो वो उसका ना एकदम से विद इन अ वीक इट क्रॉस 1 बिलियन व्यूज। सो 1 बिलियन इज अ वेरी बिग नंबर। और मेरे लिए वो बहुत ही, मतलब मैं सरप्राइज था, लिटरली सरप्राइज था कि ये कैसे हो गया। एंड थैंक्स टू इंस्टाग्राम, उन्होंने नोटिस किया ये सब एंड दे फीचर्ड मी ऑन इंस्टाग्राम का फर्स्ट न्यूज़लेटर आया जून 2020 में। तो उसमें उन्होंने 2 क्रिएटर्स फीचर किए, तो फूड में आई वाज वन ऑफ देम। तो दैट न्यूज़लेटर वाज सेंट टू ऑलमोस्ट all the creators who are registered on Bonanza. Nice. हाँ, और जो उनके साथ ब्रांड भी रजिस्टर्ड है उनको भी उन्होंने वो न्यूज़लेटर दिया। तो उसमें उन्होंने कवर किया मेरी ये स्टोरी ऑफ लॉकडाउन। पहले ये किया, लाइव सेशन किए, फिर फूड IPL किया, फिर ये फिल्टर किया, हाँ फिर फिल्टर किया। एंड फिर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली टू बी अ पार्ट ऑफ अ पैनल, जिसमें इंस्टाग्राम ने एक बॉन इंस्टाग्राम का जो हमारे सेशंस होते थे ऑनलाइन, तो उस पे क्रिएटर्स को इंस्पायर करने के लिए और कैसे ये बना सकते हैं फिल्टर्स, टू टेल देम कि आप भी बना सकते हो। मुझे तो कुछ भी नॉलेज नहीं था, मैं तो CSE बैकग्राउंड का वो भी नहीं, मुझे लॉजिक कोड्स कुछ भी नहीं पता, बट आप भी, कोई भी बना सकता है, एनीवन कैन मेक दोस फिल्टर्स। तो वो एक पैनल डिस्कशन जैसा था, तो इट वाज विद इंस्टाग्राम, सो आई वाज वन ऑफ देम। तो ये ऑनलाइन हुआ। तो मैं बोला ना कि कोविड वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स। सो ऐसे मेरी इंस्टाग्राम के साथ जर्नी एक स्टार्ट हुई। And then eventually people started loving what you're producing. करेक्ट। तो ये 2020 की बात है, 2021। एंड
अगर थोड़ा और आगे जाए तो फिर टिकटॉक वाज बैंड इन इंडिया Correct. एंड सही टाइमिंग था कि रील्स आल्सो लॉन्च्ड उसी टाइम पे बट इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन टू लेवरेज दैट थिंग कि हमारे लिए इट वाज नॉट अ गुड डिसीजन बट एज अ कंपनी पर्सपेक्टिव उनके लिए बहुत अच्छा डिसीजन था वो इंडियन मार्केट में आने का Correct. सो सबसे पहले रील्स इंडिया में ही आए और कोई कंट्रीज में नहीं आए Oh. सबसे पहले तो उसका भी लाइक प्री लॉन्च वी न्यू मतलब एक 50 क्रिएटर्स का ग्रुप बनाया था उन्होंने कि रील्स आने वाला है सो हमें पता था कि रील्स कैसे दिखने वाला है सो वी वर आई वाज पार्ट ऑफ रील्स एम्बेसडर बोल सकते हो उस टाइम पे सो हमें इंस्टा ने गाइड किया कि आपको लोगों को एजुकेट करना है कि रील्स कैसे बनानी है Correct. क्या फीचर्स है देयर इज अ टाइमर फीचर देयर इज अ अलाइन फीचर स्पीड का एक है फिर ऑडियो सिंकिंग नहीं ऑडियो का तो आने का था वॉइस ओवर नहीं था म्यूजिक का था म्यूजिक ऐड कर सकते हो आप तो बहुत ही बेसिक 4-5 फीचर्स थे वो यूज करके आप बना सकते थे रील्स और तब तो रील बहुत छोटे थे 15 सेकंड्स के आते थे 15 का 30 हुआ 30 का 60 और फिर 90 सेकंड्स तक अभी एक्सपांड हुआ तो ये एक जर्नी थी रील्स के साथ भी सो स्टार्टेड क्रिएटिंग रील्स That's nice. So इसके बाद I want to understand कि आपका जो भी ये जर्नी रहा है फूड ब्लॉगिंग का you have worked with a lot of brands, right? And Nagpur maybe you have touched to I think almost all the brands जो top listed है. I tried my best. हाँ, so उसमें से I would like to understand कौन से professional etiquettes थे जो आपने सीखे. ये मैंने सबसे ज्यादा कर्ली टेल्स में सीखे Okay. सही में मतलब कर्ली टेल्स में बहुत कुछ सीखा कि डिलीवरेबल्स कैसे डिस्कस करने चाहिए कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए आफ्टर क्लाइंट सर्विसिंग जो बोलते हैं ना क्लाइंट सर्विसिंग कैसे होनी चाहिए उसके बाद स्क्रिप्टिंग जो बोलते हैं कि फ्लो क्या रहना चाहिए वीडियो का क्या कवर होना चाहिए अब जैसे कि एक कोई भी ब्रांड मुझे प्रमोट करना है और नाउ मैं BTS बताता हूँ कि एक कोलैबोरेशन जनरली कैसे होता है क्रिएटर्स के साथ नाउ देयर इज अ ब्रांड उनका एक कैफे है और एक रेस्टोरेंट दे अप्रोच्ड अस कि नाउ ऐसा कोई भी ब्रांड हम डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं करते एटलीस्ट मी आई डोंट सिलेक्ट एनी ब्रांड रैंडमली तो सबसे पहले तो भी आई आस्क देम कि कैन यू प्लीज शेयर अबाउट योर ब्रांड व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट आपका क्या कॉन्सेप्ट है वो बहुत बताते हैं कि हमारा ये फूड में USP है कि वी आर मोर इनटू एशियन फूड और वी आर मोर इनटू मैक्सिकन फूड हमारा ये बार थीम्ड है कॉकटेल थीम प्लेस है तो ये हो गया फिर आई आस्क देम फॉर अ मेन्यू उनका मेन्यू क्या है आई चेक देम कि कैसा मेन्यू है उनका इज इट बजट फ्रेंडली इज इट हाई एंड वो सब देखना पड़ता है बिफोर कोलैबोरेटिंग विद एनी स्टडी अबाउट द ब्रांड कंप्लीटली हाँ बहुत टाइम भी लगता है एक घंटा भी दे दिया आपने मोर देन इनफ करेक्ट उसके बाद फिर फाइनल हुआ कि चलो नाउ आई एम रेडी टू कि हम लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं तो ये एक फर्स्ट स्टेप हो गया उसके बाद फिर उनकी तरफ से ब्रीफ आता है आई आस्क देम कि मुझे ब्रांड ब्रीफ चाहिए ब्रांड ब्रीफ में आपको क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं ठीक है now you have to showcase your bar you have to showcase your food you have to showcase your ambience और अब जैसे कि there is a place who have entire menu under 250 that is their USP maybe brand message which they want to convey through video correct तो ऐसा brand brief मुझे चाहिए बाकी फ्लो फिर मैं बनाऊंगा वीडियो का कि कैसा फ्लो रहेगा वीडियो का ये एक प्रोसेस हो गया तो ये सेकंड स्टेप हो गई कि ब्रांड ब्रीफ आ गया उसके बाद शूट का डेट डिसाइड होता है और मेन्यू डिसाइड होता है कि क्या शूट करना है ये थर्ड स्टेप हो गया फोर्थ स्टेप इज कि वी गो एंड वी शूट दैट कंटेंट ठीक है अब कंटेंट शूट हो गया कंप्लीटली अब फिफ्थ स्टेप आता है कि प्रोडक्शन जो बोलते हैं कि उसको एडिटिंग करना प्रोसेस करना कंटेंट वो एक होता है कंटेंट हो गया अभी एडिट हो गया एंड उसके बाद वो कंटेंट म्यूचुअली ब्रांड के साथ डिस्कस करके लाइव जाता है सो आपका पोस्ट लाइव हो गया उसके बाद एक और स्टेप आता है कि आफ्टर पोस्टिंग हाउ दैट कंटेंट इज कंज्यूम बाय योर ऑडियंस तो वो बहुत मैटर करता है वो डेटा जैसे कि कितने लाइक्स हो रहे हैं कितने शेयर हो रहे हैं
लोग एक एवरेज वॉच टाइम क्या आ रहा है जनरली कुछ वीडियो का, तो आफ्टर पोस्टिंग 24 to 48 आवर्स उसको अच्छे से एनालाइज भी करना पड़ता है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग नहीं, बट एक घंटे के बाद देखा, फिर थोड़ा आफ्टर 24 आवर्स देखा, फिर 48 आवर्स देखा। तो एक पोस्ट का जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप से लेके अभी ये एंड एंगेजमेंट तक, सो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट कंटेंट रिगरसली। तो लोगों को ऐसा लगता है ना मिथ की शूट किया, एडिट किया, डाल दिया, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो लोगों को BTS नहीं पता है जनरली, बट इट्स अ वेरी आई वुड से collabs are not easy. It's not easy. It's fun. It's काफी क्रिएटिविटी आपकी टेस्ट होती है उसमें। हमेशा कुछ नया एक क्रिएटिव एंगल डालना पड़ता है कंटेंट में, और काफी कुछ सीखने मिलता है। स्पेशली फॉर मी, मैंने काफी सारी फूड कल्चर के बारे में एक्सप्लोर किया, सीखा। जैसे मैक्सिकन फूड हो गया, लेबनीज फूड, मतलब प्री ब्लॉगिंग और प्री कंटेंट क्रिएशन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। So when I went to Bombay, तब मैंने जो मिडल ईस्टर्न फूड होता है, मेडिटेरियन फूड, वो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। जैसे कुनाफा होता है, फलाफल, हमस, ये सब नहीं पता था इतना। तो ये सब कुजिन के बारे में किया, सीखा, कैसे इनके पैलेट होता है, टेस्ट पैलेट कैसे होता है इनका। तो ये सब भी सीखने मिलता है। So it's not about only posting. I think it's a learning experience, to be very honest. Of people, Yes. culture, food, Everything, taste, everything. You even get to know people कि लोगों को कैसा लग रहा है content. How is their taste buds? How Correct. they are liking it? How they are consuming that content. Correct. Yes. I think India as a country is a very beautiful place to be a food blogger. Yes. मतलब I think it is क्योंकि US और बाकी सब countries में तो I think एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में देयर कम्स अ रिस्ट्रिक्शन और मे बी अ लिमिटेशन, बट इंडिया में एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ द कंट्री हैज समथिंग और द अदर जो बहुत न्यू है, जो कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। बिल्कुल सही बोला। So you have got you get a lot of things to explore और वो बहुत endless है। मतलब you can go back to let's say early 90s, early 80s, early 70s, ancient time में भी अगर आप चले जाओगे तो there are still a lot of things that people do not know about food. Absolutely. So even if we go to let's say tribal area या उनके कल्चर में, even if we go तो उनका भी कल्चर ऐसा है जो हमको अभी तक की नहीं पता है, and we never know कि उन्होंने क्या क्या practices किए होंगे food industry में. So that is always amazing. So my last two questions of mine, I want to ask one piece of advice that you would like to give to the young content creators coming in this industry. वैसे तो बहुत सारी एडवाइस दूंगा, बट ठीक है, I would like to keep it short and simple. First, it's definitely a good profession and a beautiful profession, I would say, कि explore करने के लिए. First, मैं ये सजेशन दूंगा कि keep it as a side gig. Full time एकदम start मत करो content creation. Okay. जैसे मेरी जर्नी मैंने बताया कि मेरे पास अच्छा बैकअप था. Correct. If you want to pursue content creation, have a solid backup. Solid भी नहीं, but at least have a backup. It's not everyone's cup of tea, क्योंकि कैसा है कि काफी सारे content creators अभी हैं. There is lot of content and lot of competition in this community. तो मे बी अब जैसे फूड, अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर आपको फूड में ही कुछ क्रिएट करना है, you have to do something extra. You have to add your creative angle, your creative inputs. उसके बाद ही you will be able to grow or to pursue this field full time. और कैसा है ना, दूर से fascinating लगता है बहुत, but until and unless आप उसमें जाओ और आप उसको खुद experience करो, तब आपको समझता है कि ये exact field workout कैसे होती है. तो मैं वही सजेशन दूंगा, don't keep it as a full time profession initially. और एजुकेशन प्लीज कंप्लीट करो. एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई सी क्रिएटर्स कि जो एजुकेशन छोड़ के इस इंडस्ट्री में, सी आपका इंटरेस्ट नहीं है उस पर्टिकुलर इसमें, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप उसको फोर्सफुली या उसको कंप्लीट करो. एनीथिंग, डू फोटोग्राफी, डू MBA, डू BBA, डू BCom, जो आपको पसंद है आप करो.
but complete your formal education. Formal education is very important. आप अगर आप content creator भी बनते हो ना आगे जाके, it will add benefits to your CV, to your portfolio. तो formal education is must, वो आपने करना चाहिए. Keep it as a side gig initially. अगर आपको लग रहा है कि you can monetize this in future, then you should convert into full-time profession. ये दो. और तीसरा कि you should challenge yourself. कैसा है? Don't restrict with you, not with bloggers, not with other creators. आप खुद को चैलेंज करो. आप खुद को मतलब जैसे अभी मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ, आफ्टर एवरी कंटेंट आई फील कि यार नहीं यार ये कुछ नेक्स्ट टाइम मैंने ये इसमें अच्छा करना चाहिए, ये शॉट ना ऐसा होना चाहिए था, ये मैंने ऐसा कवर करना चाहिए था. मैं कभी ये नहीं देखता हूँ कि यार इसने वो प्लेस ऐसे शूट किए ना तो मैंने ये करना चाहिए. See, I love to consume content of my fellow creators. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि when amazing young creators of Nagpur are creating beautiful content and मुझे कंज्यूम करने में भी अच्छा लगता है, मैं सेव करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि यार ये अच्छा क्रिएट कर रहा है कंटेंट. बट एट द एंड आपका चैलेंज आपके खुद के साथ होना चाहिए कि आप देखो कि आप खुद को कैसे इम्प्रूव कर सको आफ्टर एवरी पीस ऑफ कंटेंट. ये 3 एडवाइस मेजर मैं आपको दूंगा, मतलब टू ऑल द अमेजिंग क्रिएटर्स who are watching this video. So the last question is कि now that you have seen youngsters getting diversified in their career, Correct. तो उनका goal setting कहीं ना कहीं गलत हो जाता है. जैसे a lot of people just for the sake of doing engineering, these people are pursuing engineering, but then the outcome is very different. So one of my friends who has done mechanical engineering is now an RJ. So nice. This is a wide. I don't know how come this shift has been happening, पर ये चीज होती है, and a lot of people are facing this problem. So anything that you would recommend to youngsters while setting their goals? So आपके जो फ्रेंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद ही हैज बिकम एन आरजे. बट मैं स्टिल बोलूंगा कि ही हैज बिकम एन आरजे, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ तो है. क्योंकि इंजीनियरिंग बेसिकली ना एक जुगाड़ जो बोलते हैं वो सिखाता है कि एक टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, टाइम मैनेजमेंट टू बी प्रिसाइज कैसे यूज करना चाहिए, वो इंजीनियरिंग से ही सीखते हैं लोग. और प्रेशर को कैसे हैंडल करना है ये भी इंजीनियरिंग में लोग सीखते हैं. आई वुड से एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप हो उसमें कैसे टाइम को मैनेज करें और कैसे प्रेशर को हैंडल करें ये आपको सीखने मिलता है. तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप इंजीनियरिंग कर भी रहे हो उसके बाद आपको जो करना है आप करो. देयर आर एंडलेस ऑप्शंस. अगर आपको इंजीनियरिंग पसंद नहीं है, डोंट टेक अ वेरी फास्ट डिसीजन कि मुझे मतलब ड्रॉप आउट करना है. तो आजकल बहुत जल्दी लोग ना यंगस्टर्स बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं कि थर्ड ईयर में डिसाइड कर लिया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना. आई थिंक आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं. I know many amazing people जो इंजीनियरिंग करने के बाद भी they are into interior design, they are into construction, they are into जैसे आपने बोला RJ है, they are a food stylist. I know an engineer who is a food photographer. I know a dentist who is a food photographer. Okay. Now see dentist and he is doing food photography. कितना डिफरेंस है. But he completed his education. उसके बाद उसने चालू किया. तो आई थिंक मैंने जैसे बोला ना फॉर्मल एजुकेशन इज मस्ट, वो आप प्लीज कंप्लीट करो. उसके बाद देयर आर सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर. और अनटिल एंड अनलेस आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हो ना, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो कि यार मुझे इसमें करना है कि नहीं करना. तो अगर आरजे भी बनना है तो 6-7 months यू डू एन इंटर्नशिप विद अ रेडियो फर्म, यू डू सम वॉइस मॉड्यूलेशन के कोर्सेस ऑनलाइन. आप सीखो कि कैसे बात करते हैं, कैसे यू प्रेजेंट, कैसे आप सटनली ब्रांड इंटीग्रेट कर पाते हो. ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है. सिर्फ बात करना इज नॉट अबाउट आरजे. हाउ यू एबल टू, जैसे वो उनके सेगमेंट्स होते हैं, सो दे हैव टू सटनली इंटीग्रेट ब्रांड्स. ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ नोवेयर एक मिडल ऑफ अ कन्वर्सेशन में ब्रांड का इंटीग्रेशन आ रहा है, which is his USP, which is his forte, which is उसकी बोल सकते हो एक खासियत है कि वो कर पा रहा है. So yes, that's nice. So to all the audience who is watching this video or this podcast right now, there are few major learnings that I have got and I think I should summarize all of them up.
So the first is that तुम्हारा formal education is really important, which I think is the primary learning for all of us. And a lot of youngsters are, I think, they are not able to understand the formal education complete करना बहुत important है. So the second is all about that opportunities are endless here in India, even if you are into this industry of food blogging or even if you are a content creator. Always think that whenever you are into this field of content creation, you should always have a strong backup. And if you do not have one, so create one and then enter into this field. So which is very important. The last but not the least is keep growing. Keep hustling. Keep hustling. Struggle करना life का एक important part है, and you cannot grow without struggling. So I think a lot of youngsters are having a lot of potential. We can also develop potential. और उस चीज़ को करने के लिए somewhere down the line I think आप लोगों को ना थोड़े से ठोकर खाना essential है, और जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक कि कुछ भी possible नहीं होगा. So this was all about the creative crossroads, and we are very happy to have Sumit alongside us. And amazing experience. Thank you so much, Sumit. So we hope that you like this video. Stay tuned for more such videos and more such beautiful, inspiring stories that you are going to listen on this particular YouTube channel. And we are so fortunate to get all of your support and love. Thank you so much.